नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मस्ती की पाठशाला। आई होप यू गाइज आर ऑल सेफ एंड साउंड। और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का लेसन, करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स। But before we start, I would like to request all of you to watch the video till end, like and share my video, and please subscribe to my channel. So let's begin. And here comes the first question. Very recently, World Senior Citizen Day was celebrated on, and your options are number 1, 19th August, number 2, 20th August, number 3, 21st August, number 4, 22nd August. And इसका सही आंसर होगा 21st August. 21st अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेट किया गया था. एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? It is celebrated to raise awareness about issues that affects the lives of older people and to acknowledge their contribution to society. We should encourage and we should acknowledge the contributions of the senior citizen to the development of the society. And that's why we celebrate this World Senior Citizen Day. And this day was officially founded by Ronald Reagan. And Ronald Reagan was the former president of United States of America in 1988. And after he proposed that this day should be celebrated as Senior Citizen Day, United Nations General Assembly इन्होंने अप्रूव किया 1991 और 92 में. एंड आफ्टर दैट दिस डे is being celebrated as World Senior Citizen Day every year. And if we talk about our country, India, we have 104 million population of senior citizens. 104 मिलियन लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन है इंडिया में. एंड ये पॉपुलेशन बाय 2026 तक 173 हो जाएगा. ये जो मैंने बताया ये 2011 का था. एंड 2026 में ये पॉपुलेशन 173 मिलियन हो जाएगा. Okay, so it means that the number of senior citizens, it is increasing day by day. That means we are getting older. Anyway, सबको ये एक दिन senior citizen होना पड़ेगा. But before that, we see some government's initiative for senior citizens. We have integrated program for older persons. And this program is being implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment since 1992. And its objective is to improve the quality of the senior citizens by providing basic amenities like shelter, food, medical care, etc. ये प्रोग्राम के तहत बुजुर्ग लोगों को शेल्टर मिलेगा, फूड मिलेगा, मेडिकल केयर मिलेगा. Next we have Rashtriya Vayoshree Yojana. It is a centrally sponsored scheme for providing free assisted living aids and physical devices to people over 60 years and belong to BPL category. जो BPL category में भी है and जिसका उम्र 60 से भी ज़्यादा है, उन लोगों को फ्री में जो फिजिकल डिवाइस और लिविंग एड्स है, लाइक किसी की सुनने में प्रॉब्लम है, ओके, हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उनको हियरिंग एड्स जो मशीन होते हैं वो मशीन मिलेगा. ओके, एंड जिसको सपोज चलने में प्रॉब्लम है, ओके, सो ही और शी विल गेट वॉकिंग स्टिक. ओके, सो दिस डिवाइसेस जो कि बुजुर्ग को उनकी जो डेली लाइफ है वो थोड़ा आसान करेगा, थोड़ा कंफर्टेबल करेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, and it is a non-contributory pension scheme for people over 60 years and below the poverty line. Then we have Vayoshreshta Samman, and this award is conferred to eminent senior citizens जो कि senior citizens होने के बावजूद still now
सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एंड इसीलिए उन लोगों को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। एंड इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस काम करता है टुवर्ड्स द ओल्डर पीपल। ओके, जो सीनियर सिटीजन लोगों के लिए काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following states have become the first state in the country to offer jobs on the basis of newly approved Common Eligibility Test, CET, Common Eligibility Test? जितना सारा जो competitive exams होता है इंडिया में, different exams है for different jobs, but ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके नाम में ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मतलब है कि एक ही एग्जाम्स के अंदर बहुत सारा पोस्ट आ गया, एक ही एग्जाम के अंदर बहुत सारा एग्जिस्टिंग एग्जाम्स आ गया। ओके, सब एग्जाम्स को एक साथ कंबाइन करके ये वाला जो टेस्ट लिया जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच स्टेट इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 Karnataka. And your answer is number 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहली बार ये implement करने जा रहा है। ओके, and मध्य प्रदेश will offer jobs on the basis of the scores in the common entrance test by National Recruitment Agency NRA। ओके, एंड ये जो टेस्ट है, ये कौन कौन सा टेस्ट को रिप्लेस करेगा? RRB जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसका जो एग्जाम्स है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम्स होता है ना, IBPS जो बैंक का एग्जाम्स होता है। सो ये तीनों एग्जाम्स का अभी तक तीनों एग्जाम्स को रिप्लेस करेगा ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, मतलब कि ये तीनों एग्जाम्स आपको देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही टेस्ट देना पड़ेगा और इसका जो स्कोर होगा उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगा। आफ्टर द एजेंसी एस्टेब्लिश्ड, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ओनली अ कॉमन टेस्ट। The exam will be conducted at 3 levels. Graduate level का एग्जाम होगा, 12th का एग्जाम होगा, 10th का एग्जाम होगा। It will be definitely on online mode. The scorecard of CET will be valid for 3 years. एक बार अगर आपने सेट दे दिया एंड उसका जो स्कोर आएगा, आपका जो स्कोर आएगा, वो स्कोर 3 सालों तक वैलिड रहेगा। 3 सालों में आपको कोई ना कोई नौकरी ढूंढना पड़ेगा उस स्कोर के बेसिस पे। ओके, एंड सेट विल ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट सिस्टम। सो आई होप कि ये बहुत ही आसान होगा, बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स सिस्टम है इंडिया में, एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम। ओके, एंड जस्ट लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी was first proposed in Union Budget 2020, and this agency will provide great boon for economically deprived and also for youth in far-flung areas, women candidates, okay, facing difficulties traveling to distant cities and stay. And the government of India is to provide special attention in creating infrastructure in 117 aspirational districts. And the agency is to conduct the exam in multiple languages. Okay, so we can see that this national recruitment agency will conduct this CET, and जिसके अंदर this economically deprived जो youth है, जो young generation है, जो women's है, जिनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिनको एग्जाम सेंटर में जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा दिस रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इंदिरा रसोई योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? एंड आपका ऑप्शन है नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 दिल्ली एंड नंबर 4 पंजाब। एंड योर आंसर इज नंबर 2 राजस्थान। Now this Rajasthan government has launched the Indira Rasoi Yojana in order to pay special tribute to the former Prime Minister Rajiv Gandhi on his 76th birth anniversary on August 20. August 20 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का बर्थडे था एंड 76th बर्थ एनिवर्सरी, एंड इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना उन्होंने लॉन्च किया। इसमें क्या होगा? इसमें
to provide nutritious food to poor people in urban areas at affordable price. बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम दाम में अर्बन पुअर जो लोग हैं, सिटी में जो पुअर लोग हैं, उन लोगों को न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा, पौष्टिक खाना मिलेगा. एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू द पीपल एट ₹8 पर मील. ओके, एक मील का आपको 8 रुपए से मिल जाएगा एक मील. ओके, एंड ये थाली में क्या होगा, इस खाने में क्या क्या रहेगा? 100 ग्राम्स वेजिटेबल्स रहेगा, 100 ग्राम्स पल्सेस दाल रहेगा, 250 ग्राम्स ऑफ चपाती रहेगा एंड पिकल्स आचार रहेगा उसमें. ओके, एंड द फूड विल बी प्रोवाइडेड बाय 358 किचन्स और रसोई. ये जो रसोई बोला गया है ना, इंदिरा रसोई, रसोई का मतलब होता है किचन्स. ओके, सो किचन सेटअप किया जाएगा 213 अर्बन लोकल बॉडीज में एंड टोटल किचन होगा 358. ये 358 रसोई बनेगा जिनमें खाना बनेगा. The government also aims to make people eat their food with dignity by eating it in कैंटीन. जो गरीब लोग होते हैं, वो जो फुटपाथ पे बैठे, ये रास्ते पे बैठे, ये कोई जो खाना फेंक दिया, डस्टबिन से उठा के खाना खाते, दिस इज एक्चुअली इंसल्ट टू द डिग्निटी. ओके, सो ये गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है कि जो लोगों को खाना नहीं मिलता है, वो लोग को बहुत सस्ते में खाना मिलेगा एंड वो लोग रास्ते से उनको खाना नहीं पड़ेगा, कैंटीन में जाके बैठ के खाना खाएगा विद देयर डिग्निटी. The starting target is to feed 4.87 crore people in a year. एक साल में 4.87 करोड़ लोगों को खाना मिलेगा इस स्कीम की तहत. A special app has been launched to check the quality of food being provided to the people. So ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which city scored first rank in the Swachh Survekshan 2020? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा सिटी को फर्स्ट पोजीशन मिला? ऑप्शन है नंबर 1 नवी मुंबई, नंबर 2 इंदौर, नंबर 3 सूरत, नंबर 4 पुणे. एंड द राइट आंसर विल बी नंबर 2 इंदौर. मध्य प्रदेश की इंदौर को सबसे ज्यादा क्लीनलीनेस सिटी, साफ सुथरा सिटी होने का फर्स्ट प्राइज मिला एंड इसको दिस इज द कंसेक्यूटिव 4th टाइम, लगातार 4 बार इंदौर को मिला ये प्राइज. आप सोच ही सकते हो इंदौर कितना साफ सुथरा होगा, कितना क्लीन सिटी होगा. नेक्स्ट गुजरात को मिला, सूरत, गुजरात में जो सूरत है उसको मिला एंड देन नवी मुंबई ऑफ महाराष्ट्र. ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ. वी कैन से वाराणसी is the best Ganga town. Then cleanliness city in India. Then we can see Mysore became the cleanest city in India. The survey was held by the Ministry of Housing and Urban Affairs. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो स्कीम्स है ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत पूछे जाते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. एंड स्वच्छ सर्वेक्षण ये फर्स्ट कंडक्ट किया गया था 2016 में. इस दैट टाइम यहाँ पे 73 मेजर सिटीज थे. आफ्टर दैट इन सेकेंड फेज 2017 देयर वर 434 cities and third phase 2018 there were 4,203 cities. We can see that the number of cities, it is increasing every year. And this year fourth survey was held digitally in 2019. पहली बार ये digitally इसको conduct किया गया था. एंड स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में एक बार देख लेते हैं. दिस ईयर स्वच्छ सर्वेक्षण had integrated Swachh Sarvekshan League with the survey, and the league made cleanliness assessments throughout the year. And the parameters किसके बेसिस पे ये cleanest city होने का जो measures करते हैं, क्या हो, waste water treatment and reuse and vehicle sludge management. जो कचरा होता है
उसका जो वाटर वेस्ट वाटर वो ट्रीटमेंट कैसे होता है सिटी में, एंड जो हमारा जो रीयूज एंड व्हीकल स्लज होता है जो टॉयलेट वगैरह से जो आता है उसका जो मैनेजमेंट वो कैसे होता है, इस दोनों के बेसिस पे क्लीनेस्ट सिटी को अवार्ड दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर शक्ति एंड वेगा? ये शक्ति एंड वेगा क्या चीज है? ऑप्शन नंबर 1, ऐप फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, नंबर 2, मेडिसिन फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 4, लोअर बीट मिसाइल्स। आपको ये बोलना पड़ेगा शक्ति एंड वेगा क्या है। इसकी नाम सुन के आपको कुछ और लगा होगा, बट असल में कुछ और ही है। ये देख लेते हैं क्या है। These two are the microprocessors, and the Center for Development of Advanced Computing, CDAC, and IIT Madras, they have developed two microprocessors called Shakti and Vega. And Shakti is 32-bit processor, Vega is 64-bit processor. अगर आप कोई मशीन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या कुछ मशीन खरीदने जाते हैं तो आपको ये बिट प्रोसेसर बोलना होता है ना, 64-बिट प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो अंदर की काम करेगा, माइक्रो प्रोसेसर्स। And then we have, GUI launched the स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज। ये जो माइक्रोप्रोसेसर बनाया है IIT मद्रास ने, ये एक प्रोग्राम के तहत बनाया है, दैट इज स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज, एंड दिस चैलेंज इज बीइंग लॉन्च टू अचीव सेल्फ रिलायंस, और बोल सकते कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये इसके वजह से ये चैलेंज प्रोग्राम लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, and the challenge aims to design microprocessors that has the ability to address global challenges of technical glitches and security। जो technical जो problem होता है globally and जो security का problem होता है, we all know very recently we had we were under threat from China for security breaches and all, so and government ने बहुत सारा Chinese app भी बंद कर दिया था। So we can see that security problem is very important for us, so we need these strong microprocessors, and the prize money for the challenge is 4.3 crores, and students and startup companies can participate in this challenge। कोई student होगा, कोई startup company होगा जो कि इस challenge में participate कर सकता है। एक बार देख लेते हैं ये आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। The scheme primarily focus on vocal for local, जो मोदी जी ने बताए थे, vocal for local, like he is stressing on the local technology। Okay, so it aims to enhance manufacturing within the country in an innovative way। हम लोगों को जो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो पार्ट्स होते हैं, जो मशीन्स होते हुए, he is saying that we should manufacture them within the country। We should not import them from different other countries, so we should manufacture them by ourselves, and hence they were some organizations were selected for this mission, like AIMS for medical science के लिए, DRDO for defense research के लिए, HAL for aviation के लिए, ISRO for space के लिए, and NTPC and GAIL for energy के लिए। ओके, आपको ये बोलना पड़ेगा ये जो एम्स है, DRDO है, हल है, इसरो है, NTPC एंड गेल है, इनका जो फुल फॉर्म है ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको जो क्वेश्चंस एंड आंसर से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। Number 6, which minister launched the Corona Fighters video game? This is very innovative video game, Corona Fighters video game। इसके नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये गेम किसके लिए बनाया गया है, कोरोना के लिए, and how to fight corona। And number 1, पीयूष गोयल, number 2, प्रकाश जावड़ेकर, number 3, रविशंकर प्रसाद, number 4, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो वीडियो गेम है द कोरोना फाइटर, ये गेम किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन। एंड द राइट आंसर इज नंबर 4, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर है, एंड ही लॉन्च्ड इंटरैक्टिव
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीडियो गेम, पहली बार वैसा वीडियो गेम बनाया गया है। आप ये इमेज देख सकते जो ये कोरोना वायरस की जो यहाँ पे तस्वीर है एंड वायरस है, एंड दिस बॉय एंड द गर्ल दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस and follow COVID appropriate behavior and boost your immunity. The video game is meant, to teach people about the appropriate behavior in this difficult time, in this COVID-19, and you should boost your immunity. That's why you should play the game, and the game will teach you the techniques. He mentioned that it presents a new and creative way of teaching people the right tools and behavior to fight the pandemic. Corona Fighters video game is available on www.coronafighters.in and has been specifically designed to influence the players' action in the real world by reminding them to take the right precautions and escape the infection of the virus. इस वायरस से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपनी खुद की और फैमिली मेम्बर्स की या जो नेबर्स सब की। तो ये वीडियो गेम खेलने से आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा। वी नो एवरीथिंग नाउअडेज, बट वी very few people they follow it strictly, but many people they do not wear mask, they do not follow the protocols and follow the protections when they are going out. So this is not good for us. That's why ये game बनाया गया है। Okay, then we can move to next question. Question number 7. Recently, new strain of COVID-19 called D614G has been detected in which country? कोविड का नया स्ट्रेन मिला है जिसका नाम है D614G, कौन सी कंट्री में मिला है? एंड योर ऑप्शंस आर नंबर 1 मलेशिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 रशिया। एंड इसका सही आंसर होगा नंबर 1 मलेशिया। मलेशिया में बहुत ही रिसेंटली एक नया स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस मिला है जिसका नाम D614G है, विच इज 10 टाइम्स डेडलियर। जो अभी कोरोना है उससे ये 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, डेडलियर है, विच इज वेरी डेंजरस। एक बार जान लेते हैं मलेशिया के बारे में। इसका जो कैपिटल है कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशिया रिंगिट, इसका लैंग्वेज मलय है, एंड इंडिया के साथ इसका जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है हरिमौ शक्ति। ओके, मलेशिया में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एंड एशियन हॉकी कन्फेडरेशन दोनों ही है मलेशिया में। एंड मलेशिया में एक इंटरेस्टिंग बात बताओ आपको, ये जो आप केव देख रहे हैं ना, ये क्या है? डियर केव है। डियर केव इन मलेशिया गुनांग मुलो नेशनल पार्क में है, एंड ये नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है, इसके अंदर है। एंड इसमें दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केव चेम्बर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो केव है, दिस इज इन मलेशिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड नेक्स्ट वी हैव अनदर यूनेस्को लिस्टेड माउंटेन है। यूनेस्को ने एक माउंटेन को अपने लिस्ट में लिया है जिसका नाम है माउंट किनाबालू। दिस इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द कंट्री, एंड आप देख सकते हैं ये माउंट किनाबालू। यहाँ पे एक पार्क भी है, किनाबालू पार्क, जो कि वाइल्ड लाइफ, उसका जो फ्लोरा एंड फौना बहुत ही एनरिच्ड है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको अपने लिस्ट में ले लिया। सो इन मलेशिया देयर आर 4 थिंग्स इन द यूनेस्को लिस्ट। One is the deer cave and another is Mount Kinabalu. Okay. Next we have question number 8. Which state launches AI driven movable hospitals to contain COVID-19? AI मतलब artificial intelligence. ओके, जो मशीन लर्निंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन सब कुछ करेगा, आप जैसे बोलेंगे वो वैसे आपके इंस्ट्रक्शन सुन के काम करेगा। सो एआई ड्रिवन मूवेबल हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स आप मूव कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल्स। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन से नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 दिल्ली। कौन से स्टेट में ये वाला जो हॉस्पिटल से एआई ड्रिवन ये लाया गया है? एंड द आंसर इज नंबर 1 कर्नाटका। आप ये फोटो में देख सकते हैं इसका जो कैसा दिखने में कैसा होगा,
दिस वाज डेवलप्ड बाय वेवरा। वेवरा बोल के एक स्टार्टअप कंपनी है बेंगलुरु में। इस कंपनी ने ये तैयार किया। द पॉड, इसको पॉड्स बोलते हैं, द पॉड्स केम इन 5 वेरिएंट्स। ओके, जनरल पॉड होता है जनरल बेड की तरह, आईसीयू पॉड होता है जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होता है, डॉक्टर्स स्टे पॉड जिसमें डॉक्टर भी रह सकते हैं विद पेशेंट्स, ऑपरेशन थिएटर पॉड, इनमें ऑपरेशन भी हो सकता है विद ऑल दिस फैसिलिटीज, एंड स्कैनिंग रूम पॉड, इसमें स्कैनिंग भी हो सकता है। सो 5 तरह की ये जो पॉड बनाया गया है कंपनी के द्वारा, एंड ईच पॉड कैन एकोमोडेट 4 to 5 बेड्स। इसमें 4 to 5 बेड्स होता है जिनमें 4 to 5 पेशेंट्स रह सकता है। तो ये जो पॉड बनाया गया था ये कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए ये पॉड बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया? इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया कौन सी कंट्री ने इंडिया में इन्वेस्ट किया? एंड योर ऑप्शंस है नंबर 1 यूके, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 यूएई एंड नंबर 4 थाईलैंड। आपको बोलना पड़ेगा इनमें से कौन सा कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट किया फॉर इनोवेशन चैलेंज। एंड द आंसर इज यूके। एंड द फंड विल इन्वेस्ट £3 million in India to support scientists in academia and industry to tackle the most acute global challenges like COVID-19 and the threats to environment। ये जो साइंटिस्ट है, जो एकेडमिशियंस है, इंडस्ट्री वाला है, जो काम करेगा, किसके लिए काम करेगा? ये जो चैलेंज है ग्लोबल कोविड-19 वाला चैलेंज या फिर एनवायरनमेंट का जो थ्रेट्स होता है, जो चैलेंज होता है, उसको सॉल्व करने के लिए ये फंड दिया गया है। एंड एक बार और देख लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इन इंडिया विथ इंडिया, यूके के साथ इंडिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? अजय वॉरियर्स एक एक्सरसाइज है, कोंकण बोल के एक्सरसाइज है, देन इंद्रधनुष और एक एक्सरसाइज है। जापान के साथ भी इंडिया का बहुत सारा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, सहयोग किंजिन, धर्मा गार्डियन। जापान के साथ भी इंडिया का एक्सरसाइज होता है, सहयोग केजिन, धर्मा गार्डियन, मालाबार एंड शिन्यू मैत्री। रशिया के साथ भी होता है, इंद्र एंड अवियंद्रिना। रशिया के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है इंद्र एंड अवियानिद्रा। ओके, यूएसए के साथ भी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, युद्ध अभ्यास, मालाबार। मालाबार जो कि जापान के साथ भी होता है, जापान, यूएसए एंड इंडिया, इन तीनों मिलकर मालाबार जो उसका एक्सरसाइज होता है। वज्र प्रहार एंड कोप इंडिया। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पूछा जाता है। एंड बहुत सारा और भी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट विथ ऑल दी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। द स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी फॉर सी फूड, सी फूड जो सी फूड होता है एक्सपोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच सिटी? कौन से शहर में सी फूड का जो कंट्रोल लैबोरेटरी होता है वो तैयार किया गया है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। एंड इसका सही आंसर होगा नंबर सी गुजरात। गुजरात का जो पोरबंदर है वहां पे ये जो सी फूड कंट्रोल लैबोरेटरी है ये बनाया गया है। एंड और देख लेते जो तमिलनाडु मैंने नाम बोला था ऑप्शन में, तमिलनाडु की जो थुटुकुड़ी जो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहां पे इसरो ने अपना जो लॉन्च पैड जहां से मिसाइल लॉन्च होता है वो पैड बनाया है। एंड फर्स्ट वीमेन पुलिस स्टेशन वाज ओपन इन आंध्र प्रदेश रिसेंटली जिसका नाम है दिशा पुलिस स्टेशन। उसके जो अंदर ये प्रोग्राम के अंदर 18 पुलिस स्टेशन जो वीमेन का होगा वो बनाने की प्रॉमिस किया है। एंड पहली जो वीमेन पुलिस स्टेशन वो ओपन किया आंध्र प्रदेश में रिसेंटली। गुजरात को लेके थोड़ा और बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं। गुजरात में बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं DMIC एंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होते हैं, ये बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड ऑल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR
देन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, जिसको गिफ्ट सिटी भी बोला जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें मल्टी सर्विस सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है, एंड विथ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर IFSC, जो जो फॉरेन कंट्रीज में है वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल, जो कि हम बुलेट ट्रेन बोल रहे थे विथ द हेल्प ऑफ जापान टेक्नोलॉजी लेके। देन ग्रीनफील्ड पोर्ट्स डेवलपमेंट, भंसी बरसोई एंड मिथिविडी, ये जो पोर्ट्स है यहाँ पे ग्रीनफील्ड पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया गया है। एंड देन वी हैव कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स, जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देगा, वहाँ पे जो डॉक्स है, जो जो शिपयार्ड्स है, वहाँ पे जो काम होता है उनको लिए ये तैयार किया गया CEZs। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड द क्वेश्चंस ऑल्सो आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, टू गेट एवरी अपडेट्स। सो विल बी वेरी and don't forget to press the bell icon to get every update. We'll be back very soon with my next video. Till then, be safe, be happy, and Jai Hind.